picture. I have told you to interpret this picture. That is, the person, insurance company is there. They are providing the protection to the family. Okay, the family is providing the insurance premium. Some amount they are giving to the insurance company, half yearly and monthly or quarterly. In this way, they are giving the money in the form of insurance premium, and the insurance company will give the protection. Okay, in this, the insurance means kya? Insurance means the protection. Insurance means the protection from the financial loss. हो सकता है एक financial loss जो है होगा आगे चल के, अगर कोई person है, okay, suddenly उसका कोई business में loss हो गया, या फिर ऐसा कोई person है जो जिस पे पूरी family depend होती थी, तो उसकी death हो गई, तो अभी family क्या करेगी? If the earning member in the family is only one एंड उसकी डेथ हो गई, तो क्या होगा? फाइनेंशियली वो लोग सपोर्ट किसी से लेना चाहेंगे, तो एट दैट टाइम इंश्योरेंस कंपनी इज गिविंग द फाइनेंशियल सपोर्ट टू द फैमिली. ओके, सो इट इज द इंश्योरेंस मीन्स अ प्रोटेक्शन. इंश्योरेंस मतलब क्या होता है? प्रोटेक्शन फ्रॉम द फाइनेंशियल लॉस. इंश्योरेंस मीन्स व्हाट इज protection from the financial loss. Now there are two parties involved in the insurance. First is insured, जो इंश्योर हो रहा है, जो पैसा इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहा है, जिसको प्रोटेक्शन की नीड है. दूसरा होगा इंश्योरर. इंश्योरर मतलब जो इंश्योरेंस कंपनी होगी वो होगी इंश्योरर. ओके, देयर आर टू पार्टीज इन्वॉल्वड इन द इंश्योरेंस, दैट इज इंश्योरर एंड इंश्योर्ड. नेक्स्ट इज द इंश्योरेंस. द इंश्योर्ड विल गिव द फिक्स्ड सम ऑफ मनी. जैसे यहाँ पे दे रहा है तो फिक्स सम ऑफ मनी देगा एज द इंश्योरेंस on the timely basis, and insurance company will provide the protection to that family or to that businessman. ठीक है, अब यहाँ पे some of the principles are given in the insurance. Now see, 7 principles of insurance are there. How many principles of insurance are there? Write it in the chat box. How many are there? 7. Okay, first is principle of utmost good faith. What is principle of utmost good faith? Yes, good faith मतलब क्या होता है? Yes, faith means क्या होता है? Write it in the chat box. Yes, complete trust. The complete trust on the insurance company when they are taking the insurance policy. जब insurance policy ले रहे हैं, at that time the insured is going to disclose all the necessary information. तो उसको बोलते हैं utmost good faith. For example, in your textbook it is given that one person is there, Mr. Shantanu. उसने एक इंश्योरेंस पॉलिसी लिया, लेकिन when he was taking the insurance policy उसने बताया नहीं था इंश्योरेंस कंपनी को that he has been through the heart surgery. उसकी हार्ट सर्जरी हुई थी, तो वो उसने डिस्क्लोज नहीं किया इंफॉर्मेशन. जब वो पर्सन की डेथ हुई तब इंश्योरेंस कंपनी आई और इंश्योरेंस कंपनी ने देखा कि इस पर्सन ने हमसे पूरा इंफॉर्मेशन नहीं दिया था. दे हैव नॉट पुट द ट्रस्ट ऑन अस एंड दे हैव नॉट शेयर द होल इंफॉर्मेशन. तो इंश्योरेंस कंपनी अभी बोल सकती है कि नाउ वी विल नॉट गिव द मनी एज यू हैव नॉट डिस्क्लोज्ड whole information with us. So that is the principle of utmost good faith. The insured is going to disclose all the necessary information. जो भी information है हम लोग को faith के साथ, trust के साथ, insurance company के साथ share करनी है, उनको देना है जब हम लोग insurance policy लेते हैं. So that is principle of utmost good faith. Next is principle of insurable interest. Insurable interest means what? The person, the thing that is going to be insured. जो भी जिसको भी हम लोग इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हैं, समझो गाड़ी का इंश्योरेंस ले रहे हैं, कोई कोई व्हीकल का इंश्योरेंस ले रहे हैं, या तो फिर कोई गुड्स का इंश्योरेंस ले रहे हैं, या फिर कोई पर्सन का इंश्योरेंस ले रहे हैं. जो भी चीज का इंश्योरेंस ले रहे हैं उसमें हम लोग का इंटरेस्ट होना चाहिए. इफ देयर इज नो इंटरेस्ट इन द इंश्योरेंस, तो वो इंश्योरेंस पॉलिसी लेने की भी नीड नहीं है. ओके, द इंश्योरेंस will be taken only when there is a interest on his life and property. Life और property में interest होगा तो ही वो insurance policy लेगा उस चीज की. So that is the principle of insurable interest. Next is principle of indemnity. Principle of indemnity, what? Indemnity means guarantee. Okay, indemnity means guarantee. किसकी guarantee? That insurance company is going to
पुट द हम लोग के इसमें गारंटी देगी कि हम लोग को अगर फाइनेंशियल पोजीशन अच्छे से नहीं हो रहा है तो एट दैट टाइम द इंश्योरेंस कंपनी इज गोइंग टू पे अस. ओके, सो दैट इज द इंडेमनिटी, दैट इज द गारंटी. लेकिन कैसा होता है इसमें, देखो आपके टेक्स्ट बुक में देयर इज अ एग्जांपल, इफ द प्रॉपर्टी इज इंश्योर्ड, हम लोग की जो प्रॉपर्टी है वो इंश्योर की गई है 2 lakhs पे, ठीक है, 2 lakhs के लिए इंश्योर की गई है, लेकिन जितना लॉस हुआ है फायर से दैट इज ऑफ 1 lakh. तो जितना नुकसान हुआ है ना दैट इज गोइंग टू बी कवर्ड बाय द इंश्योरेंस कंपनी. सो 1 lakh विल बी गिवन बाय इंश्योरेंस कंपनी. सो इन दिस वे there is a principle of indemnity. Next is principle of subrogation. Sorry, principle of contribution. Now what is principle of contribution? That this principle is applicable to all the contract. जितने भी हम लोग कॉन्ट्रैक्ट इंश्योरेंस के ले रहे हैं ना उस पे ये लिया जाता है. दैट इज, समझो एक पर्सन है, सम पर्सन इज देयर प्रीति. ओके, एक प्रीति नाम की पर्सन है, शी हैज टेकन द इंश्योरेंस पॉलिसी फ्रॉम 2 इंश्योरेंस कंपनी. उसने 2 इंश्योरेंस कंपनी से पैसा लिया है, मीन्स पॉलिसी ली है, पैसा नहीं पॉलिसी ली है. ओके, एक इंश्योरेंस कंपनी है जिसमें से उसने 1 लाख का लिया है और दूसरी इंश्योरेंस कंपनी है जिसमें से उसने 2 lakhs का इंश्योरेंस पॉलिसी लिया है. तो एट दैट टाइम व्हाट हैपेंस, अगर प्रीति को नुकसान हुआ, ठीक है, समझो 1.5 लाख का, ठीक है, 1.5 लाख का इंश्योरेंस का नुकसान हुआ, तो प्रीति जो है 1 लाख इससे ले सकती है और बाकी का 50,000 इससे ले सकती है, या तो फिर पूरा का पूरा 1,50,000 इससे ले सकती है, लेकिन दोनों से 1,50,000 नहीं ले सकती. सो दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन. दैट दिस प्रिंसिपल applicable to all the contracts of indemnity where the insured has taken out more than one policy. एक पॉलिसी से उसने ज्यादा लिया है for the risk of same subject matter. कोई उसको सब्जेक्ट मैटर जो था, अभी गुड्स उसके पास पड़े थे प्रीति के पास, उसने प्रीति ने सारे के सारे गुड्स जो हैं 1,50,000 जो था वो सेम अमाउंट उसने 1 लाख का भी कराया 2 lakhs का भी कराया, तो वो 1,50,000 या तो एक से लेगी या तो दोनों से रेशो में लेगी. दोनों से 1,50,000 नहीं ले सकती. इन दिस वे द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन इज गोइंग टू बी देयर. नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन. The principle of subrogation is applied to everywhere. Now, principle of subrogation क्या होता है? This principle is applicable only when the damaged property has any value after the event causing the damage. अभी यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिया गया है कि मिस्टर ए के पास, ओके, मिस्टर ए को एक व्हीकल था, ठीक है, मिस्टर ए हैज सम व्हीकल, वो व्हीकल अभी चोरी हो गया. ओके, नाउ द इंश्योरेंस कंपनी इज गोइंग टू पे. Why? Because loss by theft है. अभी अपने व्हीकल का उसने इंश्योरेंस कराया था मिस्टर ए ने, तो ये जो लॉस बाय थेफ्ट हुआ, अभी इंश्योरेंस कंपनी ने उसको थेफ्ट का पैसा दे दिया, उस गाड़ी का पैसा दे दिया. अब जब उसको गाड़ी वापस मिल गई तो दिस मिस्टर ए हैज नो राइट ओवर द व्हीकल. व्हाई? बिकॉज मिस्टर ए को ऑलरेडी इंश्योरेंस से पैसा मिल चुका है. अब ये जो उसको गाड़ी मिली है वापस, वो कहाँ जाएगी? इंश्योरेंस कंपनी के पास जाएगी. सो दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ subrogation. If the insurance company has already paid the amount of the loss, तो अगर वो लॉस रिकवर हो भी रहा है कहीं से, तो फिर वो लॉस जो है किधर जाए, प्रॉफिट किधर जाएगा? इंश्योरेंस कंपनी के पास जाएगा. सो दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन. नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ लॉस मिनिमाइजेशन, दैट इज मिटिगेशन ऑफ लॉस. देखो आपकी टेक्स्ट बुक में दूसरा वर्ड क्या दिया गया है? मिटिगेशन ऑफ लॉस. ठीक है, mitigation of loss means what? The loss minimization. What does this principle say? अगर कोई लॉस हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल द हाउस इज बर्निंग, तो उस टाइम पे हाउस का इंश्योरेंस किया है, लेकिन आपको खड़े नहीं रहना है कि हाउस जल रहा है, घर जल रहा है तो जलने दो. वी हैव टू डू द एक्शन ऑफ मिनिमाइजिंग द लॉस. लॉस को जितना हो सके कम करने का ट्राई करना है. सो दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ लॉस मिनिमाइजेशन. Insured, that is the person who has taken the insurance policy, must always try to minimize the loss of the property in the case of uncertain events. अभी देखो यहाँ पे दिया हुआ है एग्जाम्पल, a house of Mr. Jayant is on fire due to the electric short circuit. इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट की वजह से हाउस जो है जयंत का is on the fire. In that case, Mr. Jayant cannot remain passive. उसको खड़े नहीं रहना, उसको पैसिव रोल नहीं प्ले करना. He must try his best to save the house. So Mr. Jayant must be active and cannot watch his
हाउस बर्न बिकॉज हाउस इज इंश्योर्ड. ऐसा नहीं सोचना है कि हाउस इंश्योर्ड है तो मैं उसको बचाऊंगी नहीं. दे हैव टू ट्राई फॉर द मिनिमाइजेशन, दैट इज मिटिगेशन ऑफ लॉस. नेक्स्ट इज कॉजा प्रॉक्सिमा. व्हाट इज कॉजा प्रॉक्सिमा? दैट इज द नियरेस्ट कॉज हम लोग को देखना है. फॉर एग्जाम्पल, हम लोग एक व्हीकल था, ओके एक व्हीकल है, दैट व्हीकल जो है ना या तो चोरी हो गया है, ओके या तो वो फायर की वजह से खराब हो गया है, ओके. तो जो भी नियरेस्ट कॉज होगा ना, द इंश्योरेंस कंपनी विल ट्राई टू टेक दैट कॉज, ओके. सो इन दिस देयर इज अ एग्जांपल दैट हाउस जो है वाज इंश्योर्ड अगेंस्ट द रिस्क ऑफ थेफ्ट. हाउस को हम लोग ने इंश्योर किया था, लेकिन कैसे इंश्योर किया था? थेफ्ट के वजह से. सो इन दिस द हाउस जो है इंश्योर्ड है लेकिन थेफ्ट के वजह से, लेकिन बाद में हाउस को आग भी लग गई. तो दोनों में से जो नियरेस्ट कॉज होगा दैट विल द इंश्योरेंस कंपनी विल कंसिडर, ओके. इन दिस वे देयर आर 7 प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस. Insurer has to be reimbursed a definite sum on the maturity or completion of policy. Life insurance is only for those who survive and not for the person who pass away. It is a moral responsibility of every person to protect his family member from uncertain circumstances or death. Hence, life insurance play a vital role in the world. Yes, what it is written that life insurance, okay, in life insurance what it is that there is a life insurance contract. In this the human life is insured. ह्यूमन लाइफ को इंश्योर कर रहे हैं अगेंस्ट द ओल्ड एज. हो सकता है ओल्ड एज के लिए कर रहे हो सकता है किसी बीमारी अगर हो रहा है तो फिर एट दैट टाइम, अभी देखो अर्निंग मेंबर एक ही है तो उसका लाइफ इंश्योरेंस किया जाता है कि अगर वो इलनेस से उसकी डेथ हो गई या फिर एक्सीडेंट से उसकी डेथ हो गई या फिर ओल्ड एज से उसकी डेथ हो गई, तो लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट जो है उस टाइम पे हेल्प करता है. लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी. देखो आपको ब्लैंक आ सकता है कि इंडेमनिटी से रिलेटेड, ऐसा कोई इंडेमनिटी से नहीं है रिलेटेड ऐसा कोई पार्ट ऑफ द इंश्योरेंस. तो दैट इज द लाइफ इंश्योरेंस. क्यों? बिकॉज हम लोग यहाँ पे कोई भी गुड्स वगैरह या फिर और कोई चीज हम लोग इंश्योर नहीं करें. वी आर इंश्योरिंग द लाइफ, दैट इज द वी आर टेकिंग द इंश्योरेंस ऑफ अ पर्सन. यहाँ पे पर्सन का इंश्योरेंस लिया जा रहा है. Hence, the insurer has to reimburse a definite sum on the maturity or the completion of policy. अभी देखो ये जो लाइफ इंश्योरेंस है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस ली थी फॉर द 20 years, ठीक है. 20 years के लिए लाइफ इंश्योरेंस लिया, 30 years के लिए लाइफ इंश्योरेंस ली. तो एट दैट टाइम जब ये मेच्योरिटी कंप्लीट हो रहा है, आफ्टर 30 years आई विल गेट द होल अमाउंट एज वेल एज द मेच्योरिटी पे जितना अमाउंट हम लोग ने कॉन्ट्रैक्ट के साइन पे लिया होगा वो अमाउंट हम लोग को वापस मिलेगा. लाइफ इंश्योरेंस इज ओनली फॉर दोज हु सर्वाइव. ये उनके लिए है जो अभी तक हैं, नॉट फॉर द पर्सन हु पासेस अवे. अब देखो कोई भी अर्निंग मेंबर है, वो अभी है और वो अर्न कर रहा है, उसका हम लोग लाइफ इंश्योरेंस जो है ले रहे हैं, ठीक है. सो दैट इज फॉर द पर्सन्स हु आर देयर हु आर सर्वाइविंग, नॉट फॉर द पर्सन्स हु पासेस अवे. ये हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी पर्सन है हम लोग उस पर्सन को प्रोटेक्ट करें, अपने फैमिली मेंबर्स को प्रोटेक्ट करें फ्रॉम द अनसर्टन सर्कमस्टेंसेस या फिर डेथ को. हेंस लाइफ इंश्योरेंस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ओके. इन दिस वे देयर इज अ लाइफ इंश्योरेंस. वी विल सी व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिसी, ओके. यहाँ पे देखो इंश्योरेंस पॉलिसी है, लेकिन कौन सी टाइप्स है यहाँ पे? लाइफ इंश्योरेंस के कुछ टाइप्स दिए हुए हैं. फर्स्ट इज टर्म लाइफ इंश्योरेंस. व्हाट इज टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी? जब हम लोग टर्म की बात करते हैं, दैट इज टर्म, दैट इज फॉर द स्पेसिफिक पीरियड. हम लोग ने कुछ पॉलिसी ली है, दैट इज फॉर द स्पेसिफिक पीरियड. यहाँ पे लोएस्ट प्रीमियम होता है अमंग ऑल द इंश्योरेंस पॉलिसी. सबसे लोएस्ट जो प्रीमियम पे करना पड़ेगा ना, सो दैट इज द among this term life insurance policy. सबसे कम प्रीमियम यहाँ पे पे करना पड़ता है. Why? Because यहाँ पे प्रीमियम जो है फिक्स्ड रहता है. प्रीमियम इज फिक्स्ड इन दिस एंड डू नॉट चेंज. यहाँ पे चेंज नहीं होता है. In the case of the ultimately death, dependents will receive the benefit amount specified in the insurance life insurance agreement. अगर देखो इस टर्म के अंदर फॉर दिस पीरियड, अगर इस टर्म के अंदर उस लाइफ इंश्योरेंस जिसने लिया है उसकी डेथ हो जाती है, ओके, यहाँ तक समझो
अभी यहाँ पे 2 मंथ्स ही बचे थे, लेकिन उस 2 मंथ्स के अंदर ही उस पर्सन की डेथ हो गई, तो जितना भी अमाउंट उसको मिलना था ना वो अभी मिल जाएगा। अगर 2 मंथ्स के बाद यहाँ पे होती है तो जब यहाँ पे उसका प्रीमियम वगैरह जो दिया है ना वो मैच्योरिटी के टाइम पे मिल जाएगा। तो दिस इज फॉर द स्पेसिफिक पीरियड, और यहाँ पे जो प्रीमियम होता है वो सबसे लोएस्ट होता है। नेक्स्ट इज होल इंश्योरेंस, होल लाइफ पॉलिसी, दैट इज in this the whole life of the person is insured. The insured cannot receive the money from the insurance company till he is alive. जब तक वो जिंदा है तब तक उसको इंश्योरेंस का कुछ भी पैसा नहीं मिलेगा। आफ्टर इट्स डेथ जितना भी इंश्योरेंस का पैसा होगा ना वो किसको जाएगा, उसकी फैमिली को जाएगा। सो दैट इज होल लाइफ, मतलब पूरे लाइफ में इंश्योर्ड पर्सन विल नॉट रिसीव द मनी अंटिल ही इज अलाइव। आफ्टर हिज डेथ द इंश्योरेंस का जितना पैसा होगा वो किसको जाएगा, टू हिज फैमिली। सो दैट इज नोन एज द होल लाइफ। द मनी बिकेम्स पेबल ऑन द डेथ ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन टू द नॉमिनी, या तो नॉमिनी को मिलेगा या तो फिर लीगल हेयर को मिलेगा, जो भी डिजीज्ड इंश्योरेंस होल्डर होगा उसके बाद। ओके, सो दैट इज द होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। नाउ थर्ड इज एंडोवमेंट इंश्योरेंस पॉलिसी। दिस इंश्योरेंस इज टेकन फॉर द स्पेसिफिक पीरियड, और इसमें अलॉन्ग विद द बोनस, यहाँ पे बोनस भी दिया जाता है, इज गिवन ऑन द डेथ ऑफ द इंश्योर्ड टू द डिपेंडेंट्स। ओके, डिपेंडेंट्स को यहाँ पे एंडोवमेंट में कुछ बोनस दिया जाता है। देखो टर्म लाइफ में भी स्पेसिफिक पीरियड था, एंडोवमेंट में भी स्पेसिफिक पीरियड था, लेकिन यहाँ पे क्या था, लोएस्ट जो प्रीमियम है वो है यहाँ पे, लेकिन एंडोवमेंट में क्या है, यहाँ पे कुछ बोनस पे किया जाएगा अपॉन द डेथ ऑफ द इंश्योरेंस होल्डर। इंश्योरेंस होल्डर के डेथ के बाद कुछ जो पैसा होगा that will be given, इंश्योरेंस प्रीमियम का भी प्लस बोनस का भी पैसा दिया जाएगा टू हिज फैमिली। ओके, नेक्स्ट इज मनी बैक पॉलिसी। मनी बैक पॉलिसी क्या होगा, द मनी बैक पॉलिसी दैट इज रेगुलर परसेंटेज ऑफ सम एश्योर्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम। जस्ट वेट यस, द इंश्योरेंस इसमें क्या होगा मनी बैक में, दैट इज इट इज अवेलेबल फॉर द टर्म, कुछ टर्म के लिए ये इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, दैट इज फॉर 12 years, 12 years के लिए हो गया, 15 years के लिए हो गया, 20 years के लिए होगा, 25 years के लिए होगा। इन दिस द insurance holder will guarantee the benefit of the full sum in the event of death of the insured to the dependents of the insured. यहाँ पे कुछ परसेंटेज दिया जाता है और मनी बैक भी दिया जाएगा, पैसा वापस दिया जाएगा upon the death of the insured. So that is the money back policy. Next is ULIP, that is unit linked insurance policy. These are stand for, these are very popular. इसमें क्या होता है, इसमें म्यूचुअल फंड्स कनेक्टेड होते हैं। सो डू यू नो व्हाट इज म्यूचुअल फंड्स? म्यूचुअल फंड्स आपको पता है क्या होता है? यस, देखो म्यूचुअल फंड्स क्या होता है, आप लोग ने ना एसपी वगैरह में शेयर्स पढ़े हैं, बॉन्ड्स पढ़े हैं, डिबेंचर्स पढ़े हैं, राइट? पढ़ा है आप लोग ने एसपी में, शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स? राइट इट इन द चैट बॉक्स। है, बॉन्ड्स पढ़ा है। तो म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है, यस, तो म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है, देखो पूरा जो अमाउंट होगा ना उसमें कुछ अमाउंट जो होगा वो शेयर्स में लिया जाएगा, कुछ अमाउंट जो होगा वो डिबेंचर्स में लिया जाएगा, कुछ अमाउंट जो होगा, यस, कुछ अमाउंट जो होगा वो बॉन्ड्स में लिया जाएगा, और कुछ अमाउंट जो होगा ना वो इंश्योरेंस में लिया जाएगा। सो दैट इज यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। हम लोग लिंक कर रहे हैं किसको, इंश्योरेंस प्लान को, किसके साथ, म्यूचुअल फंड्स के साथ। ओके, दीज आर द इंश्योरेंस होल्डर विल गेट द बेनिफिट ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑल्सो अलॉन्ग विद द म्यूचुअल फंड्स ऑल्सो। सो इन दिस यूलिप, अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग, आपको ब्लैंक भी आ सकता है ये, कि इन द यूलिप प्लान the mutual the insurance plans are connected towards the dash, किसके साथ कनेक्टेड है, म्यूचुअल फंड्स के साथ। तो म्यूचुअल फंड्स क्या होता है, एक पूल ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है, इन्वेस्टमेंट का एक बहुत बड़ा पूल होता है जिसमें सब लोग डुबकी मारते हैं। तो कौन कौन डुबकी मारेगा, शेयर्स डुबकी मारेंगे, बॉन्ड्स डुबकी मारेंगे, तो अलॉन्ग विद दैट इंश्योरेंस भी वहां पे आ जाता है। तो यूलिप इज दैट यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान अलॉन्ग विद द म्यूचुअल फंड्स। ओके, next is children's policy. Now what is child insurance or the children's policy? This is designed to meet the child's future financial needs. अभी देखो यहाँ पे हम लोग सेविंग भी करते हैं प्लस इन्वेस्टमेंट भी होता है। इन दिस चाइल्ड इंश्योरेंस पॉलिसी ना सेविंग इज ऑल्सो देयर
प्लस इन्वेस्टमेंट भी है हम लोग का और इंश्योरेंस भी है, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों कंबाइन हो रहा है, हम लोग सेव भी कर रहे हैं बच्चे के लिए, इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बच्चा, अभी देखो अगर कोई पर्सन है जिसके पेरेंट्स हैं, अभी वो बच्चा जो है वो अभी 2 to 3 years का ही है, ठीक है, अभी पैदा हुआ है, 2 to 3 years का बच्चा है। आगे चल के उसके पेरेंट्स उसके साथ होंगे नहीं होंगे तो क्या है, क्या भरोसा है। तो दे आर टेकिंग द चाइल्ड्स पॉलिसी, चिल्ड्रंस पॉलिसी, एट दैट टाइम दे आर सिक्योरिंग द फ्यूचर ऑफ द चिल्ड्रन, दे आर सिक्योरिंग द ड्रीम ऑफ द चिल्ड्रन। जो भी चिल्ड्रन का ड्रीम हो गया वो उसको जी सके, इसके लिए वो लोग अभी से ही सेव करना चालू करते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चालू करते हैं। So child insurance policy gives you the advantage to start investing in the children's plan right from the time the child is born. चाइल्ड जब से पैदा हुआ है तब से वो लोग इन्वेस्ट करना चालू करते हैं, और जब एडल्टहुड में रीच हो जाएगा, जब वो बड़ा हो जाएगा, दे कैन विड्रॉ दिस अमाउंट, ओके। तो एट दैट टाइम द जो चाइल्ड का बच्चा जो ड्रीम कर रहा है, जो उसके ड्रीम्स होंगे, सो दे कैन लिव टू दैट, सो दैट इज नोन एज द चिल्ड्रंस पॉलिसी। नेक्स्ट इज रिटायरमेंट प्लान। रिटायरमेंट क्या होता है? व्हेन द पर्सन इज रीचिंग एट अ ओल्ड एज, ठीक है, जब वो रिटायर हो जाता है, ओल्ड एज उसका आ जाता है, तो ओल्ड एज में हु इज गोइंग टू सपोर्ट दैट पर्सन? उस पर्सन को सपोर्ट कौन करेगा? इंश्योरेंस पॉलिसी जो है उसको सपोर्ट करेगी व्हेन ही इज, अभी से ही, दैट इज द एज ऑफ 23-24, जब वो था तब से उसने ओल्ड एज के लिए जमा करना शुरू कर दिया था। सो दैट इज द रिटायरमेंट प्लान, ओके। That is the there is a saving and investment insured and income during the retirement, उसको retirement plan बोला जाता है। इसमें corpus is invested for the generating a regular income, okay? उसको हम लोग pension या तो annuity बोलते हैं। क्या बोलते हैं? pension या annuity बोलते हैं इसको, ठीक है। There are two words involved in the retirement plan, that is pension and annuity. The person will get the pension and the annuity among receiving the insurance policy, okay. So these were the types of the life insurance policy. Now next we will move towards the other. So before we move towards, you have to answer some of the following questions, okay. Yes, Kaustubh. Marine insurance covering damage to ship due to any mess-up like crash, collisions, or piracy attacks, provides coverage to cargo against any damage, loss, or misplacement, covers the loss of freight, covers life of crew members and other on ship. Yes, what it is written in the marine insurance. Marine insurance का मतलब क्या होता है? हम लोग कवर कर रहे हैं, क्या कवर कर रहे हैं? डैमेज टू द शिप। अभी मरीन इंश्योरेंस में क्या इन्वॉल्व है? हमारा शिप इन्वॉल्व है, ठीक है। शिप को किसके लिए इंश्योर कर रहे हैं? व्हाई वी आर इंश्योरिंग द शिप? बिकॉज ऑफ मिसचैप, दैट इज एक्सीडेंट्स, बिकॉज ऑफ द क्रैश, कुछ क्रैश हो गया, शिप कोलिजन, कुछ किसी से शिप जो है टकरा गया, या तो फिर पायरेसी, कुछ अटैक्स हो गए, किसी ने शिप पे अटैक कर दिया, हम लोग उस इसके लिए शिप को इंश्योर कर रहे हैं। वी आर इंश्योरिंग द शिप अगेंस्ट दीज डैमेजेस, ओके। सो द इंश्योरेंस कंपनी विल प्रोवाइड द कवरेज। किसको कवर करेगी इंश्योरेंस पॉलिसी? कार्गो को, जो भी हमारे गुड्स वगैरह हैं। अभी देखो यहाँ पे पर्सन्स हैं जो गुड्स लेके जा रहे हैं, तो ये जो गुड्स है वो हम लोग जो है ना इंश्योर कर रहे हैं अगेंस्ट एनी डैमेज। अगर गुड्स को कुछ डैमेज हो गया, अगर क्रैश हो रहा है या फिर कोलिजन हो रहा है, गुड्स डैमेज हो गए, तो उस गुड्स का पैसा कौन देगा? हम लोग को, राइट। तो इंश्योरेंस कंपनी को हम लोग बोलते हैं कि अगर ऐसा कुछ होगा तो यू हैव टू पे अस द अमाउंट। सो दे आर प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट द डैमेज ऑफ कार्गो, लॉस ऑफ कार्गो, किधर गुम हो गया कार्गो या मिसप्लेस हो गया कार्गो, तो दे आर प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट दैट। कवर्स द लॉस ऑफ फ्रेट, हम लोग ने कुछ फ्रेट टैक्स वगैरह जो होता है, हम लोग ने फ्रेट भरा था, तो उसका अगर लॉस हो रहा है तो इंश्योरेंस कंपनी विल पे। कवर्स द लाइफ ऑफ क्रू मेंबर्स, हो सकता है कोलिशन में किसी पर्सन की डेथ हो गई, तो उस टाइम पे हु इज गोइंग टू पे द मनी? अभी वो जो जिसकी डेथ हुई शिप में, वो भी तो अर्निंग मेंबर था ना किसी फैमिली का, तो उसको पैसा कौन देगा? इंश्योरेंस कंपनी। सो कवर्स द लाइफ ऑफ द क्रू मेंबर्स, जो शिप पे मेंबर्स है, क्रू अवेलेबल है, क्रू उधर प्रेजेंट है, तो उसको कवर करते हैं। अदर्स ऑन द शिप, क्रू मेंबर्स हो गया, और कोई शिप पे प्रेजेंट था, पैसेंजर्स थे, उसका जो इंश्योरेंस है वो किधर आता है?
marine insurance में. Okay, marine insurance is going to protect against all these, whether it is a cargo, whether the persons are there in the ship, whether the ship is going to be damaged, collision, piracy attack. So these are all in the marine insurance. So marine insurance gives the protection against the loss caused due to the dangers of sea. sea के वजह से कुछ हो रहा है तो marine insurance हम लोग को लॉस से प्रोटेक्ट करेगी. It is a form of insurance contract जहाँ पे vessels, okay, vessels means ships, vessels जो है वो cover हो रही है. Okay, vessels. Next is cargo या passengers, cargo या फिर crew members और we can say the passengers. ओके सारे प्रिंसिपल्स जो हैं वो यहाँ पे मरीन इंश्योरेंस में अप्लाई होते हैं. लेकिन इफ द क्वेश्चन इज देयर कि लाइफ इंश्योरेंस पे कौन सा प्रिंसिपल नहीं आता तो यू हैव टू रिमेंबर द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी. बाकी मरीन इंश्योरेंस पे ऑल द प्रिंसिपल्स आर गोइंग टू बी अप्लाइड. ओके नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ मरीन इंश्योरेंस. यस, हु इज गोइंग टू रीड? कुछ जो वेसल है, हमारी जो वेसल है स्पेसिफिक जर्नी के लिए जा रही है तो उस जर्नी के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, वॉयज पॉलिसी ले रहे हैं. इट इज द पॉलिसी जहाँ पे सब्जेक्ट मैटर दैट इज द वेसल इज गोइंग टू बी इंश्योर्ड अगेंस्ट द स्पेसिफिक वॉयज. ओके इसमें हम लोग कुछ टाइम इन्वॉल्व होता है. रिस्क बिगिंस ओनली व्हेन द शिप स्टार्ट्स ऑन द वॉयज. जब शिप अपनी जर्नी स्टार्ट करेगी तब से रिस्क जो है चालू होगा और तब से ही ये इंश्योरेंस पॉलिसी भी चालू होगा. फॉर एग्जाम्पल सितंबर में ये शिप जाने वाली है कोई और कंट्री में, ठीक है, तो जब वो शिप सितंबर में चालू करेगी ना अपना जर्नी तो तब से ये इंश्योरेंस पॉलिसी चालू होगा. ओके इन दिस वे द इंश्योरेंस पॉलिसी इज गोइंग टू बी कवर्ड. नेक्स्ट इज टाइम पॉलिसी. इन दिस the subject matter is insured for the definite period of time. कुछ definite period of time के लिए हम लोग subject matter को insure कर रहे हैं. A time policy cannot be there for exceeding 1 year. 1 year से ज्यादा नहीं होना चाहिए. Okay, up to 1 year the time policy is going to be there, but it may contain the continuation clause. हो सकता है हम लोग वापस एक पॉलिसी ले जो इसके ही रिलेटेड होगी तो कंटिन्यू वो हो जाएगी, तो यहाँ पे कंटिन्यूएशन क्लॉज भी आ जाएगा. The continuation clause मतलब क्या होता है? If the voyage is not completed within the specified time, the risk will be covered until the voyage is completed. अभी समझो कि 1 साल उसको ज्यादा लग गया, 1 साल से ज्यादा लग गया उसको ट्रैवल करने के लिए. अभी सितंबर से शुरू हुआ था, हम लोग को चाहिए था कि नेक्स्ट सितंबर तक वो अपनी जर्नी कर लेगा, लेकिन बिकॉज ऑफ सम रीजंस इसको दिसंबर लग गया. ठीक है, 2 मंथ्स एक्स्ट्रा लग गए, तो ये 2 मंथ्स जो है हम लोग यहाँ पे टाइम पॉलिसी में कंसिडर करेंगे. कंटिन्यूएशन क्लॉज आ जाएगा अगर किसी रीजन की वजह से शिप जो है पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में वापस नहीं आ रही है तो. ओके सो दिस इज नोन एज द टाइम पॉलिसी. ओके वी विल कंटिन्यू दिस इन द नेक्स्ट लेक्चर. ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे. ओके यहाँ तक सबको समझा?